Mukaiyama reaction. It is known as Mukaiyama reaction. So before going to this reaction, let me first discuss about some of the catalysts which is used in this reaction. So first one is the TMSCl. Is it known as trimethyl? It is known as trimethyl silyl chloride. Trimethyl silyl chloride, right? Okay, the structure of this one is the here silicon, 3-methyl group, and one is Cl. So trimethyl silyl chloride, right? So what is the function of this one? So it is act as a protecting group. It is act as a protecting group. Now what is the protecting group? So in case of the protecting group, there is a protection of any one functionality. Say for example, let me take one example of amino acid. For example, if we have amino acid, suppose here anything, here H. Suppose you are going to work with the COOH group and you don't want to interfere the NH2 group. आपको कोई ऐसी रिएक्शन करवानी है जो COOH के साथ भी होती हो और NH2 के साथ भी होती हो, लेकिन आपको सिर्फ वो रिएक्शन इसके साथ करवानी, इसके साथ नहीं करवानी. तो आप क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल बोक है, वो भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप है. तो हमने क्या कर दिया, NH2 जो था उसको बोक से प्रोटेक्ट कर दिया. इसके हिसाब से क्या होगा, तो अब जो आप रिएक्शन करवाएंगे वो इसके साथ जाएगी, ए वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सो TMSCl एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द पर्टिकुलरली ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन को आपको प्रोटेक्ट करना है तो ए वाला डालना है. और एक भी है बेंजाइल क्लोराइड. दिस इज ऑल्सो एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर द ऑक्सीजन. चलो यहाँ पे क्लोरीन निकल के यहाँ ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे जो भी हो. सो इट इज ऑल्सो यूज फॉर द बेंजाइल क्लोराइड विच इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन. सो हियर लाइक एमिनो एसिड, यहाँ पे बोक चलता है और एक और आता है FMOC. सो दीज आर दी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, राइट. सो हियर in Mukaiyama reaction, TMSCl act as a protecting group. Second reagent we are going to use is the TaCl for titanium tetrachloride, which is act as a Lewis acid. Now what is the role of a Lewis acid? The Lewis acid always accept electron pair. Most remember, Lewis acid always accept electron pair. कहाँ से करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, जिसके पास लोन पेयर होगी, right? So TaCl4 act as a Lewis acid. And the third reagent or catalyst we are going to use in this reaction is the LDA, which is known as lithium diisopropyl amine. Okay, now the structure of lithium diisopropyl amine is, suppose here is the amine N. One is isopropyl group and the second isopropyl, 1 2 3 carbon branching at the second number carbon. Suppose 1 2 and 3, so branch at the second number carbon, so we can say that isopropyl. So 2 times isopropyl group, so we can say that diisopropyl amine. And the next one is the lithium. Here 2 valency of nitrogen is utilized, 1 valency is remain, that's why it is negatively charged. To stabilize the negative charge, lithium is a positive charge, right? So it is known as lithium diisopropyl amine. Now the role of LDA is to abstract the proton. That's why we can say that LDA is the strong base. So the question arises that why we cannot use the NaOH, KOH, potassium tertiary butoxide or any other like base. Why we are not using other base instead of lithium diisopropyl amine? Okay, lithium diisopropyl, the main and important functionality of lithium diisopropyl amine is that it abstracts the proton from any hindered position. Hindered position means ऐसी पोजीशन कि जहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना वेरी डिफिकल्ट हो. फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है, यहाँ पे CH है,
यहाँ पे एक बेंजीन देंगे, यहाँ पे बेंजीन देंगे, तो अब क्या होगा, ए प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए OH माइनस को वहाँ पे अटैक करना पड़ेगा। लेकिन क्या रहेगा कि यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग है, यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग है, दैट मीन्स बेस कैन नॉट अटैक द हाइड्रोजन वेरी इजीली। सो इन दैट केस to abstract this proton, LDA is used, right? That's why I'm telling you that the LDA abstract the proton from hindered position. अगर आपके पास बहुत सारे बल्की ग्रुप, जो प्रोटॉन आपको एब्स्ट्रैक्ट करना है उसके पास में बहुत सारे बल्की ग्रुप होंगे, तो LDA वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. So in this reaction 3 type of catalyst, or we can say the reagent is used. First one is the TMSCl, second one is the TaCl4, third one is the LDA. TMSCl act as a protecting group, TaCl4 act as a Lewis acid, LDA act as a base, or we can say the strong base which abstract the proton from any hindered position, right? So now we are moving to the Mukaiyama reaction, right? So the first thing is the principle. First thing is the principle. As we discussed that, we are going to discuss principle, reaction, mechanism and application part of any reaction in our syllabus. So the principle of the Mukaiyama reaction is the Mukaiyama reaction is stereoselective aldol condensation reaction. Aldol condensation reaction. So now, as we know that in case of the aldol condensation reaction, we are going to use aldehyde or ketone. So here same aldol condensation reaction which is catalyzed by TaCl4, TMSCl and LDA to produce चलो aldol condensation प्रोडक्ट जो थी वही यहाँ पे रहेगी, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी. द प्रोडक्ट इज सेम लाइक इन aldol condensation, बीटा हाइड्रोक्सी carbonyl compound, and one more step is there. Product is the beta hydroxy carbonyl compound which undergoes dehydration, or we can say the removal of water to give alpha beta unsaturated carbonyl compound. So this is the principle of Mukaiyama reaction. So your starting material is same like in the aldol condensation. In aldol condensation we are going to use the aldehyde or ketone as a reactant molecule. So here the important thing is use of 3 type of catalyst. Product is same, beta hydroxy carbonyl compound. Now the next step in the Mukaiyama reaction is that the water molecule liberation, and the final product is alpha beta unsaturated carbonyl compound, right? So this is the principle. Now we are going to move reaction of Mukaiyama reaction part. So as we discuss in Mukaiyama reaction, the starting material is same like in the aldol condensation. Let me take one simple example, ketone. So first of all, it react with the LDA. I am going to discuss reaction. We will discuss detail in the mechanism. So first one, any carbonyl compound react with the LDA and TMSCl. So it gives one intermediate type molecule. Here O, which is attached with the TMS. So we discussed that the TMS act as a protective. So here protection of O, and here CH2, right? So here LDA abstract the proton, TMSCl here attached. Now this one react with the TaCl4, titanium tetrachloride, which is act as a Lewis acid. Now as we know that in aldol condensation reaction, 2 molecule of reactant is used. So one molecule here we will use. Now the second molecule we are going to use, suppose we are going to use the same molecule, but just I am changing here R2 to differentiate these two
right? To differentiate those two carbonyl, it may be same or it may be differ, right? And the final product is R1, here OH, sorry, here carbonyl, here OH, here R2, and this is the CH3. So we can say that this carbonyl is as it is and this carbonyl is converted to OH. Now as I discussed that in the final product, liberation of water molecule, hydrogen from here, OH from here. So this bond transfer to here, this bond transfer to OH. So the final product is R1, here carbonyl as it is, यहाँ पे जो डबल सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया इस एक कार्बन के साथ, R2 है और CH3. सो कार्बोनाइल कार्बन के पास में जो कार्बन है अल्फा एंड दिस इज द बीटा. सो वी कैन से दैट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड. ये सिर्फ अभी रिएक्शन है, राइट? ये रिएक्शन है. Okay, now we are moving towards the mechanism part. Mechanism. So mechanism is quite lengthy, so you have to take care more concentration in this part. Mechanism. So mechanism step 1. Step 1 में क्या रहेगा? The use of LDA and TMSCl as we discuss in the reaction. So your starting material is any carbonyl compound. Let me take the same as we use in the reaction. So as we know that this is the ketoform, this is the ketoform because the ketone functionality is there. Now ketoform is easily converted into the enol form, right? Ketoenol, which is known as ketoenol tautomerism. So this keto part is now converted to enol. How? So for example this is hydrogen, इसे हम दिखा देते हैं. ए बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और ए जो वाला हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास जाएगा. एक कीटो फॉर्म है, इसको हमें इनोल, इन प्लस ऑल मीन्स डबल बॉन्ड भी रहेगा और OH भी रहेगा, इनोल, राइट? सो हाइड्रोजन फ्रॉम CH3 ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, दिस बॉन्ड ट्रांसफर टू हियर. सो हियर R1, हियर OH. H कहाँ से आया? CH3 में से. और यहाँ पे डबल बॉन्डेड CH2. यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड था, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ एज H प्लस यहाँ से निकल रहा है तो H प्लस O माइनस के साथ अटैच हो गया और OH हो गया. यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया. सो दिस इज द इनोल फॉर्म. नाउ द रोल ऑफ LDA इज स्टार्ट. LDA, lithium diisopropyl amine. So lithium diisopropyl act as a strong base, so it abstract the proton. यहाँ पे ही प्रोटॉन है वो abstract कर लेगा, so it will converted to O minus and double bond CH2 as it is. चलो LDA का काम खत्म हो गया यहाँ पे. अब बारी आती है TMSCl, ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, राइट? ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड. अब क्या होगा? ए वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो ये सिलिकॉन पे अटैक करेगा. नाउ एज वी नो दैट क्लोरीन बेस्ड लिविंग ग्रुप, इट लीव फ्रॉम द मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज अटैक ऑन द सिलिकॉन, क्लोरीन बेस्ड लिविंग ग्रुप लीव फ्रॉम द मॉलिक्यूल. सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज R, ये OTMS शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्राइमिथाइल सिलाइल, डबली बॉन्डेड CH2. Clear? Doubly bonded CH2. So this is the product of step 1. Okay, now we are moving towards the step 2. Okay, एक कार्बोनाइल हमने यहाँ पे यूज कर लिया. हमारे पास अभी दूसरा कार्बोनाइल है. सपोज कि हम इसको R2 के हिसाब से देखते हैं टू मेंटेन दी फंक्शनैलिटी, राइट? एक यहाँ पे कार्बोनाइल यूज हो गया, यहाँ पे हम दूसरा वाला यूज कर रहे हैं. हमने दो ऑलरेडी यूज कर लिया, LDA एंड TMSCl यूज कर लिया. अब हमारे पास जो पेंडिंग कैटलिस्ट है वो है TiCl4, टिटेनियम टेट्रा क्लोराइड. नाउ टिटेनियम टेट्रा क्लोराइड एक्ट एज ए लेविस एसिड. व्हाट इज द रोल ऑफ लेविस एसिड? लेविस एसिड ऑलवेज अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर. सो हियर ऑक्सीजन कैरी 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन कैरी 2 लोन पेयर विच इज अटैक ऑन द टिटेनियम, राइट? सो इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो ये ऐसे रहेगा TiCl, Cl,
Cl एंड Cl। सो ए वाला जब यहाँ पे टिटेनियम पे अटैक करेगा तो टिटेनियम में से कुछ निकलना चाहिए, निकलेगा क्या? Cl, क्योंकि Cl है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है। सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दी R2, ईयर डबली बॉन्डेड O, CH3 एज इट इज। चलो ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज किया है, एक इसके साथ कनेक्ट हो गया टिटेनियम के साथ। टिटेनियम के पास और क्या है? 3C है। सो हियर ऑक्सीजन की 1, 2 एंड 3 वैलेंसी। सो हियर ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। चलो अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा। तो अब क्या कर सकते हैं? तो स्टेप 3 दिखाते हैं अभी। स्टेप 3 इसमें क्या रहेगा? ये जो ऑक्सीजन है वो अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अपने तरफ खींच लेगा। सपोज कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट आई, एक तो ये वाली थी हमारे पास R1 O TMS, यहाँ पे डबली बॉन्डेड CH2 प्लस दूसरी जो प्रोडक्ट है वो ए वाली है R2 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे TI Cl एंड Cl। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। एक कार्बन है वो भी CH3 के साथ ज्वाइन है, राइट। चलो अब क्या होगा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी इसको। चलो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आई, स्टेप 1 की और स्टेप 2 की। स्टेप 1 की प्रोडक्ट ऐसी थी R1 O TMS, इसके साथ डबल बॉन्डेड CH2, स्टेप 1 की प्रोडक्ट है। दूसरी जो प्रोडक्ट आई हमारे पास ए से थी R2 डबल बॉन्ड O विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड O इज अटैच विद दी TiCl3 एंड इज अटैच विद दी CH3। क्लियर? नाउ अब होगा क्या कि ए वाला ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। दैट मीन्स दिस कार्बन इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज। इसको स्टेबलाइज कौन करेगा? ए वाला, क्योंकि हमें ए पता है कि ए इलेक्ट्रॉन रीच है। अल्किन इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन रीच स्पीसीज, दैट्स व्हाई दिस विल अटैक ओवर हियर। इसको यहाँ से अटैक कर दिया तो ए कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको स्टेबल कौन करेगा? TMS निकल के, मीन्स यहाँ से TMS निकल जाएगा, क्योंकि अब उसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आने वाली है। सो इट इज नाउ कन्वर्टेड टू R1 एज इट इज। हियर TMS निकल गया और डबली बॉन्डेड O, ए कार्बन है वो CH2 के साथ। CH2 ने अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे अटैक करने में यूज कर दिए ए वाला कार्बन। सो ए वाला कार्बन में यूज किया, एक वाला कार्बन के साथ O और उसके साथ TiCl एंड Cl, राइट। ए कार्बन के साथ अभी क्या है? R2 है और इसके साथ ही CH3 है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चलो अब स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक ऐसा शोकस करती है, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट कैसे रहता है? सो दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। चलो A2 A3 A4 A5 और जो टिटेनियम है वो 6। So first of all it is converted to 6 member transition। R1 as it is, O as it is, यहाँ से CH2, यहाँ से A4th वाला कार्बन, उसके साथ ऑक्सीजन और उसके साथ टिटेनियम। मैं टिटेनियम को ऐसे दिखा रहा हूँ। चलो इसके साथ क्या है? CH3 है और R2 है। अब 6 मेंबर ट्रांजिशन कैसे फोकस करेगा? ए वाला टिटेनियम इसके साथ बॉन्डिंग में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि TiCl3 और TiCl4 एक्ट एज ए लेविस एसिड। अगर उसको कहीं से भी लोन पेयर मिल रहा है तो वो उसको गेन करने की ट्राई करेगा। सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट विच इज नोन एज 6 membered transition state, right? Why 6 member? So 1 2 3 4 5 and 6, that's why it is known as 6 member transition state। okay, अब इसमें से क्या होगा? यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे सिंपली ए बॉन्ड ब्रेक का होगा। हमें क्या चाहिए? बीटा हाइड्रोक्साइड। दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज दी बीटा कार्बन। चाहिए हमें क्या? बीटा के ऊपर OH। तो यहाँ से हम ब्रेक करेंगे, यहाँ पे H आ जाएगा। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज R1 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे OH और ए वाला कार्बन के साथ CH3 एंड R2।
चलो अब हमें ये पता है कि हमें यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। बीटा एलिमिनेशन मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। सो दिस बॉन्ड ट्रांसफर टू हियर, दिस बॉन्ड ट्रांसफर टू हियर, सो OH माइनस H प्लस, it liberate one water molecule and the final product is R1 C double bond O, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इसके साथ CH3 and R2. Clear? So this is alpha and this is the beta. Alpha beta unsaturated carbonyl compound is the final product. Clear? Is it clear? So this is the step 3. स्टेप 1 में A मिला, स्टेप 2 में A मिला, स्टेप 3 में दोनों कंबाइन हो गए, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ और फाइनल प्रोडक्ट इज दिस वन. सो हियर 3 catalyst is important. First one is the TMSCl which act as a protecting group. Second one is the LDA which is act as a strong base which abstract the proton from very hindered position, and the third one is the TaCl4 which is act as a Lewis acid. So this is the entire mechanism of Mukaiyama reaction. Clear? So now we are moving towards the application part. Moving towards the application. So in application, let me take 2 examples. First one is the reaction of benzaldehyde with this one OTMS and here methyl. ये क्या है? स्टेप 1 की प्रोडक्ट डायरेक्ट दी हुई है. स्टेप 1 की प्रोडक्ट TMS यूज कर लिया, LDA पे यहाँ पे यूज कर लिया होगा, मीन्स दिस इज स्टेप 1 प्रोडक्ट डायरेक्टली दी हुई है. अब हमें कौन सा वाला यूज करना है? TaCl4 यूज करना है. क्या होगा TaCl4 में? ये O का जो लोन पेयर है वो इसके साथ अटैच करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O TiCl3, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोजन एज इट इज. अब क्या रहेगा कि A वाला जो बॉन्ड है, A वाला बॉन्ड, A बॉन्ड यहाँ पे आएगा, A डबल बॉन्डेड है वो A कार्बन पे अटैक करेगा, A ऑक्सीजन अपना बॉन्ड ले लेगा. सो द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज बेंजीन रिंग, उसके साथ कार्बन, कार्बन के साथ O TiCl3, A कार्बन के साथ हाइड्रोजन एज इट इज, A कार्बन के साथ अटैच है. ओके, A कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप है, A कार्बन के साथ दिस वन, इसके साथ O, राइट, A है ना, O, ये O हो गया ना. क्लियर? तो ये डबल बॉन्डेड हो गया, इसके साथ एक और मिथाइल ग्रुप. क्लियर? अब लास्ट स्टेप में हमने क्या किया था? एडिशन ऑफ H प्लस. यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. हमें एप्लीकेशन पार्ट में 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट शोकेस करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली अल्फा एंड बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट शोकेस करना है. सो हियर कन्वर्टेड टू OH डबल बॉन्डेड O, 2 मिथाइल ग्रुप एज इट इज एंड हियर मिथाइल. चलो लास्ट स्टेप में हमें क्या किया था? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ए वाला यहाँ पे नहीं होगा. क्यों? तो कि यहाँ पे OH तो है लेकिन यहाँ पे H नहीं. ये जो दोनों है वो क्या है? मिथाइल ग्रुप है. तो यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है, यहाँ से आगे जाने की जरूरत नहीं है. अगर यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिलता है देन यू कैन रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल एंड गिव द फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड carbonyl compound. But in this case there is not presence any hydrogen on alpha carbon. That's why the beta hydroxy carbonyl compound is the final product in this case only. In this case only. Suppose कि यहाँ पे aldehyde के पास यहाँ पे CH2 होगा, suppose हम यहाँ पे CH3 रख दे तो फिर it is possible. But in this case here is the hydrogen, here 2 methyl group. Suppose यहाँ पे हम हाइड्रोजन रख दे रहे तो भी ये पॉसिबल रहता. लेकिन अब क्या रहेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल ग्रुप है. That means we cannot remove the water molecule over here. Clear? So this is the first application. Now let me start with the second application part. So let me take the starting material as cyclohexanone. Cyclohexane plus ketone, cyclohexanone plus benzaldehyde. In the presence of TMSCl, LDA and TaCl4. So how you identify that? It is Mukaiyama reaction. So on the basis of this condition,
राइट। तो अगर एरो के ऊपर 3 रिएजेंट और कैटलिस्ट दिए हुए हैं, दैट मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द मुकायामा रिएक्शन। सो चलो इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कीटो फॉर्म इज कन्वर्टेड टू इनॉल फॉर्म। सो हियर OH and here double bond. This is the enol form, keto enol. This one is the keto form and this one is the enol form. अब क्या होगा, LD abstract the proton, ये वाला प्रोटॉन ये abstract कर लेगा, so here नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अटैक ऑन दी TMSCl, यहाँ पे अटैक करेगा, Cl रिमूव हो जाएगा, so now it is converted to double bond as it is O-TMS. So this is the step 1 product. Clear? Okay. RD8 के पास क्या है, कार्बोनाइल है। चलो सेकंड स्टेप की बात करते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, दिस इज रिएक्ट विद द TaCl4, तो दिस इज लॉन्ग पेयर, अटैक ऑन द टिटेनियम, 1 क्लोरीन रिमूव। ठीक है, हमने मैकेनिज्म तो देख लिए, थोड़ी शॉर्ट में और स्पीड में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे TiCl3 एंड दिस इज द हाइड्रोजन। सो नाउ दिस डबल बॉन्ड, this bond transfer to here, this bond transfer to this carbonyl group and this bond transfer to this oxygen, right? So now this benzene as it is, which is attached with the carbon, and this carbon is attached with the O, TiCl3। चलो एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन के साथ अटैच होगा, ये कार्बन किसका पार्ट है, ये रिंग का पार्ट है। चलो रिंग दिखा देते हैं, साइक्लोहेक्सेन रिंग। इसकी अल्फा कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्डेड O। यहाँ पे दिखाओ या यहाँ पे दिखाओ, सेम कंडीशन है। चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, है ना। एक कार्बन के पास वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड और दिखाना है, तो हम यहाँ पे दिखा, यहाँ दिखे, सेम ही है। लास्ट स्टेप में क्या रहता था, यहाँ पे से ब्रेक। सो दिस इज नाउ कन्वर्टेड टू OH, here cyclohexanon ring, and this is double bond, so this is alpha and beta, so we can say that beta hydroxy carbonyl compound। चलो इसमें से लास्ट स्टेप, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पॉसिबल है, यस है। यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, 1, 2 and 3 वैलेंस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाई, 1 with carbonyl, 1 with CH2 and 1 with CH, means 4th valence is also from hydrogen, so hydrogen from here, OH from here, so the final product is benzene ring which is attached with the cyclohexane with the double bond, and here is the keto group, so this is the product। चलो अब हमें ये पता है कि हमारे पास 2 टाइप के रिएक्टेंट थे, आल्डिहाइड एंड कीटोन। हमें ये पता है कि कीटो की रिएक्टिविटी आल्डिहाइड से कम रहती है, कीटो ग्रुप की रिएक्टिविटी आल्डिहाइड से कम रहती है। दैट मीन्स दिस कीटो ग्रुप मस्ट बी मेंटेन थ्रू आउट दी नहीं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में ये मेंटेन रहना चाहिए। मीन्स अगर आपके पास आल्डिहाइड और कीटोन दोनों है, तो आल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है उसको OH में कन्वर्ट करना है, आल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है उसको OH में कन्वर्ट करना है, और ए वाला कीटो ग्रुप एज इट इज रहना चाहिए, क्योंकि कीटो ग्रुप की रिएक्टिविटी आल्डिहाइडिक ग्रुप से कम रहती है। दैट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट में कीटो ग्रुप एज इट इज होना चाहिए। तो दिस इज द मुकायामा रिएक्शन। हैप्पी लर्निंग।